اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے ذکر پر مشتمل مذاکرات کے سلسلے میں ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں دو معزز شخصیات ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ مکرم و محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد العدین صاحب، جو کہ صدر انجمن احمدیہ قادیان ہیں اور عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ فلکیات کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ میں گفتگو دو معزز مہمانان کی طرف پھیروں، اس پروگرام کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت 186 کی تلاوت پیش کی جائے گی۔ اس کے لیے میں عزیز نعیم احمد کاشف سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ جزاکم اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانوں کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فوائد اس پیارے رنگ میں بیان کیے ہیں کہ انسان بے ساختہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور اس بات کی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے حصول کے لیے سعی اور کوشش کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے حصول کے لیے سعی اور کوشش کی تمنا دل میں نہیں پیدا کرتا تو پھر وہ نہایت ہی بدقسمت انسان ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اقتباس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: رمضان شریف انسان کو اس مقصد کی طرف لے کر جاتا ہے جس کی خاطر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ رمضان شریف انسان کو اس مقصد کی طرف لے کر جاتا ہے جس کی خاطر انسان پیدا کیا گیا ہے،
یہ انسان کو بنین و انسان کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس کے باوجود بڑے ہی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کو پائیں اور خالی ہاتھ اس میں سے نکل جائیں۔ رمضان کی برکتوں میں سے ہو کے نکلیں لیکن یہ پانی ان کو نہ چھوئے اور چکنے گھڑے کی طرح ویسے کہ ویسے وہاں سے آگے چلے جائیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ الفضل رواح 25 جون 1983 عیسوی۔ اب میں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب کی طرف اس گفتگو کا رخ پھیرتے ہوئے ان سے سورۃ البقرہ کی آیت میں موجود یہ الفاظ، سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں موجود یہ الفاظ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے متعلق یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان الفاظ کو اس جگہ ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے اور ان کے کیا معنی اور کیا تفسیر ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ اپنے معمول کے مطابق مکہ سے دور ایک غار تھی جس کا نام تھا غار حرا۔ یہ غار مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر منا کے راستے پر واقع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ اس غار میں چلے جاتے اور جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کئی راتیں اس غار میں گزار دیتے، جو کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، جب کہ نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی، نہ روشنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس اندھیری غار میں ایک انسان اکیلے کیسے عبادت کرتا ہوگا، آج اس کا تصور کرنا بھی ایک محال ہے۔ آپ وہاں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ عبادت کر رہے تھے اور عبادت کرتے کرتے ایک غیر معروف ہستی، ایک وجود آپ کے سامنے آیا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 24 ناطق، جس میں بعد میں جس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، 24 تاریخ تھی ناطق کی، یعنی 24 تاریخ رمضان کی تھی، اور اگر ہم اس کو عیسوی سن میں ڈھالیں تو یہ 20 اگست سن 610 عیسوی کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لائے اور آپ کو فرمانے لگے اقرأ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اس کے 2 مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، حالانکہ وہاں پڑھنے کا سوال نہیں تھا، اندھیرا گھپ ایک غار ہے، جو جبرائیل علیہ السلام نے کہنا تھا آپ نے پیچھے پیچھے پڑھتے جانا تھا، مگر آپ کو اندرونی طور پہ یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو پیغام مجھے دے رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچانا ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل امر ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ اس طرح آپ نے 3 دفعہ کیا، اور تیسری دفعہ آپ نے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق وہ پڑھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پڑھنے لگ پڑے۔ اس طرح اس مہینے میں، رمضان کا جو مہینہ تھا، اس کی 24 تاریخ کو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یہاں یہ ضمناً بتانا بھی
मुनासिब होगा अपने तलबा के लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फ़रमाया, जैसा कि अभी आपने समात फ़रमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब एक तरफ रमज़ान में कुरान मजीद के नज़ूल का ज़िक्र है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला सूरतुल क़द्र में फ़रमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वहाँ रात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और रमज़ान के माने हैं जलन, तपिश। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की तड़प में इतना महव हुए कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इसका एक नक्शा खींचा है, वह वजदका दाल्लन फहदा, अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार हो गए आप, अल्लाह ताला तक पहुँचने के रास्ते तलाश करने लगे आप, और अपनी कौम को उस रास्ते पे चलाने के आपके दिल में तमन्ना पैदा हुई। और दूसरा नक्शा अल्लाह ताला ने ये खींचा कि ये एक रात थी, लेकिन ये बड़ी अहम रात थी क्योंकि इसमें कुरान मजीद का इस ज़माने में नज़ूल शुरू हुआ। उसके बाद कुरान मजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता चला गया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी आखिरी बीमारी के दिनों में थे तो आपने एक दफ़ा फरमाया, इन्ना जिब्रीला कान युआरिज़ुनी अल कुरआन फ़ी कुल्ल सनतिन मर्रतन व इन्नहु आरज़नी अल आन मर्रतैन। ज़रकानी में ये हदीस मौजूद है और बाद दूसरी किताबों में भी। इसका मतलब ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ मिलकर रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का एक दौर करते थे, लेकिन इस साल उन्होंने 2 दौर किए मेरे साथ। इसका मतलब ये हुआ, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 23 या 24 रमज़ान आए तो कुरान मजीद के बाज़ हिस्से 24 बार आप पर नाजिल हुए, और वो आयात जो कि आपके ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मुबारका में नाजिल हुई वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 या 3 बार नाजिल हुई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुरान मजीद रमज़ान में भी उतरा, इसमें कोई शक नहीं कि बाकी दिनों में भी उतरता रहा, लेकिन ये रिवायत हमको बताती है कि रमज़ान में भी एक दफ़ा फिर सारे का सारा कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था। और रम्ज़ के माने हैं कि ये तपिश, ये जलन, ये मोहब्बत रमज़ान के साथ कुरान मजीद की है। और अगर इस एहसास के साथ कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो एक दिल में तड़प पैदा होती है कि अल्लाह ताला ने इसको रम्ज़ में, एक मोहब्बत के माहौल में और तड़प के माहौल में उतारा, और ये दावत दी कि इस कुरान मजीद को दूसरों तक हम पहुँचाएँ, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक। और रात जो दुनिया में छाई हुई है, इस रात को नूर में तब्दील करना, ये अफराद जमात का फ़र्ज़ है, उन लोगों का फ़र्ज़ है जो कुरान मजीद और सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होते हैं। वो तभी होगा जब कि रमज़ान में हम दुआओं की तरफ तवज्जो देंगे जो अगली आयात इस तरफ हमें मुत्तले करती हैं और बताती हैं, और कुरान मजीद के ऊपर हम गौर करेंगे और दूसरों के लिए उसको हदायत का ज़रिया बनाएंगे, उन तक इसको पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला सही रंग में हमें कुरान मजीद अपने पे उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रमज़ान के महीने का अहम तकाज़ा है और इसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद भी की है। सूरतुल बकरा की जो आयत आप अभी तिलावत की गई, इसमें ये अल्फाज भी आते हैं कि फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु, यानी जो भी तुम में से रमज़ान को देखे वो इसके रोज़े रखे। और हम सब जानते हैं कि रमज़ान को देखने का ये तरीक़ा है कि हम चाँद को देखते हैं
اور چاند کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق مختلف بحثیں اٹھتی چلی آ رہی ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ تمام مسلمان ایک ساتھ روزے رکھیں، اور کبھی یہ بحث اٹھتی ہے کہ مشینی ذرائع سے جو چاند کو دیکھنے کا طریق رائج ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں محترم حافظ ڈاکٹر صالح محمد الدین صاحب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اس بارے میں وضاحت کے ساتھ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس تعلق سے قرآن کا کیا طریق ہے، اور قرآن کا جو قرآن نے ہمیں اس تعلق سے کیا ہدایت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا طریقہ عمل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہتر قرآن مجید کو سمجھنے والے ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور آپ نے یہ ہدایت ہم کو دی کہ چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو، اور اگر بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ایک دن ٹھہر جاؤ، اور چاند دیکھ کر پھر عید کرو، اور اگر بادل کی وجہ سے نظر آئے تو ٹھہر جاؤ۔ تو اس میں یہ بالکل واضح ہے، چاند دیکھا جائے۔ رمضان کا مہینہ بلکہ تمام قمری مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے ہوتے ہیں۔ یہ انگریزی مہینوں کی طرح نہیں کہ کوئی 28 کا ہو، کوئی 31 کا ہو، بلکہ 29 اور 30 ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر 29 دن پورا کرنے کے بعد چاند نظر آتا ہے تو آپ رمضان کے روزے ختم کر دو، عید کر لو۔ نظر نہ آئے تو ایک اور دن روزہ رکھ لو اور 30 ختم کر کے پورا کرو۔ بالکل آسان طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، لیکن ہم خواہ اس کو زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں۔ اس پر عمل کیا جائے بالکل صاف ہے، آسان ہے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن مشکل یہ ہے، لوگ چاہتے ہیں بہت پہلے سے معلوم ہو جائے کب رمضان شروع ہونے والا ہے، کیوں 29 دن تک ہم انتظار کریں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ملک میں رمضان ایک ہی دن منائیں۔ اس قسم کے خیالات کی وجہ سے یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سوالات کا بھی میں کچھ جواب دیتا ہوں، پھر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کچھ سائنس کی باتیں بھی آپ کو ایک نقشے کی طرح بتلاؤں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں نہ ایک ہی ملک میں رمضان منایا جائے، اس کی بات یہ ہے کہ اگر ملک چھوٹا ہو تو یہ ممکن ہے، جیسا کہ انگلستان ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ لیکن بڑا ملک ہو جیسا امریکہ ہے یا روس ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ امریکہ جائیں تو نیو یارک میں جو وقت ہوتا ہے اس میں، اور جو کیلیفورنیا میں جو وقت ہوتا ہے اس میں کوئی 3-4 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اتنا بڑا وقفہ ہے کیونکہ بہت بڑا ملک ہے۔ ایسا ہی روس بھی بہت بڑا ملک ہے، وہ جاپان کے پاس سے شروع ہوتا ہے، پھر بالکل یورپ تک جاتا ہے، اور کئی گھنٹے ہے وہاں پر بھی۔ ہندوستان اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن لہٰذا ہندوستان میں کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی وقت کے اندر عید منائی جاتی ہے، عموماً ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک کے کسی حصے میں چاند نظر آتا ہے، کسی حصے میں چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہمارے پاس قادیان میں محترم ناظر صاحب اصلاح ارشاد نے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ اصول بنا لیا کہ ہر ایک صبح اپنی حالت کو دیکھے، اور صوبائی امیر جو ہے وہ دیکھے کہ کہیں چاند نظر آیا کیا، تاکہ کیونکہ یہ بہت نایاب ہوگا کہ ایک ہی صوبے میں 2 الگ دنوں میں چاند نظر آئے۔ وہ ممکن ہے لیکن بہت نایاب ہے۔ لیکن ایک ہی ملک میں چاند کا الگ تاریخوں میں نظر آنا ممکن ہے، اور اتنا نایاب نہیں ہے۔ وہ عموماً زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، کم از کم ہندوستان کے لیے، کہ ایک ہی وقت میں پورا ہندوستان چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ کیوں نہ ہم سب ایک ہی دن میں سارے لوگ منائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ چھوٹا ملک ہو یا صوبہ ہو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن بڑے ملکوں کے اندر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کل کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ
کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں رمضان شروع کریں، یہ چیز جو ہے حدیث کی روح سے ٹھیک درست نظر نہیں آتی، کیونکہ ایک جگہ چاند نظر آئے گا اور دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا۔ امریکہ میں ہو سکتا ہے، نیو یارک میں نظر نہ آئے، نظر آ جائے، کیلیفورنیا میں نظر نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر جو مشینی ذرائع ہیں، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ننگی آنکھ سے ہی دیکھتے تھے، لیکن آج کل ہمارے پاس بائنوکولرز بھی ہے، ہمارے پاس دوربین بھی ہے، ان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی جگہ اگر وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ٹیلیسکوپ کو میں سے دیکھ کر کرتے ہیں، تو اس طریقے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جو باوجود دوربین رکھنے کے ننگی آنکھ سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اسی کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے دوربین سے دیکھنے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوربین سے دیکھنا کچھ زیادہ مدد نہیں دے گا، کیونکہ دوربین جو ہے مدد دیتی ہے اگر آپ بہت کوئی چیز چھوٹی ہو، آپ دوربین سے دیکھ لے سکتے ہیں، جو آپ کو ظاہری آنکھ سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ لیکن چاند نظر جو نہ آتا ہے، اس کی پہلے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی حائل ہو جاتی ہے، اور جب تک کہ سورج کی روشنی زیادہ تیز رہے گی، اگر آپ بڑے سے بڑا دوربین بھی لے لیں، لیکن اگر سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ ہے تو آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ خفیف سی مدد آپ کو مل جائے، اور ایسے کیس جہاں ڈاؤٹ فل ہے، دوربین کی مدد سے آپ حل کر کے ایک دن کا آگے پیچھے کر سکیں۔ لیکن عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دوربین سے زیادہ مدد فائدہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہاں، تو یہ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب میں کچھ سائنس کی بات، اور کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، پھر میں کچھ سائنس کی بتا۔ اب میں سائنس کے حوالے سے کو بتاتا ہوں کہ چاند کب نظر آتا ہے۔ فرض کرو کہ یہ سورج ہے، اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ زمین ہے ہماری، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک چکر وہ ایک سال کے اندر لگاتی ہے، اور ہماری زمین کے اطراف چاند گھوم رہا ہے۔ فرض کرو زمین جاتے جاتے یہاں چلی گئی، اور چاند زمین کے اطراف گھوم رہا ہے، تو یہ چاند چھوٹا ہے زمین کے مقابلے میں، اور وہ اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ دونوں ایک ہی سینس میں گھوم رہے ہیں، یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، یہ نہیں کہ ایک کلاک وائز ہے ایک اینٹی کلاک وائز ہے، ویسا نہیں ہے، دونوں ایک ہی طریقے ایک ہی سمت پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، سورج یہاں ہے، زمین یہاں ہے، اور پھر یہ چاند کی آربٹ یہاں جاتی ہے۔ جب چاند یہاں ہوتا ہے، اب چاند کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو سورج کی طرف نہیں ہوتا وہ اندھیرا روشنی نہیں دیتا۔ اگر زمین جو ہے اس حصے کو دیکھ رہی ہے جو روشن ہے تو اس کو چاند نظر آئے گا، اگر پوری روشنی آ رہی ہے تو پورا چاند نظر آئے گا۔ جب چاند یہاں ہوگا مثلا، تو سورج کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے نا، سورج یہاں ہے، سورج کی روشنی اس حصے پر پڑ رہی ہے، اس حصے پر پڑ رہی ہے، اور زمین جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس وجہ سے چاند مکمل نظر آئے گا آپ کو جب چاند وہاں ہوگا۔ لیکن جب چاند یہاں ہوگا تو زمین یہ سورج چاند کا یہ حصہ جو سورج کی طرف ہے یہ روشن ہے، لیکن چاند کا وہ حصہ جو زمین کی طرف ہے وہ روشن نہیں ہے، اور اس لیے چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ حصہ روشن ہے، مگر چاند ہم زمین سے اس حصے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم زمین سے اس حصے کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور جب اس قسم کی حالت ہو کہ چاند اس طرف ہو، چاند زمین اور سورج کے درمیان ہو،
तो फिर हम देख नहीं सकते। और एस्ट्रोनॉमी के लोग, इल्म हयात के लोग अपने महीने को उस वक्त से शुरू करते हैं जबकि चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये तरीका है और इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं। जिस तरह के हम ये बता सकते हैं कि सूरज कितने बजे तुलू होगा, कब गुरूब होगा, चाँद कब तुलू होगा, चाँद कब गुरूब होगा, इसको एग्जैक्ट बता सकते हैं। इसमें कोई एहतिमाल नहीं है, कोई वहम नहीं है। लेकिन इस तरह से इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल करेक्ट बता दे सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि इसी रात के वक्त हो, ये किसी भी वक्त भी चाँद यहाँ आ जा सकता है। हो सकता है दोपहर के वक्त यहाँ आ जाए, हो सकता है रात के वक्त आए, हो सकता है मगरिब के वक्त आए, कोई भी वक्त हो सकता है ये इस वक्त। फिर क्या होता है, चाँद अब और आगे बढ़ता है। तो जब चाँद और थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर हमको नज़र आने लगता है और उसके लिए वक्त चाहिए। और उमूमन 24 घंटे दरकार होते हैं। चाँद जो एस्ट्रोनॉमी के लोग जब शुरू करते हैं चाँद को, उसके बाद कोई 24 घंटे के बाद हम लोग कहते हैं कि चाँद नज़र आया और शुरू कर देते हैं। तो ये 24 घंटा जो है रफ़ है। ये भी मुमकिन है 24 घंटे से कम वक्त में नज़र आ जाए, 20 घंटे में भी नज़र आ जाए। रिकॉर्ड मैं समझता हूँ 16 घंटे का है और उससे कम अगर कोई कहे सुबह से देखना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ आप जाएं 24 घंटे के बाद 28 घंटे को भी चाँद बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आता। ऐसा भी होता है कि 30 घंटे का हो जाए फिर भी नज़र ना आए, ये भी मुमकिन है। और बल्कि ये भी मुमकिन है कि 36 घंटे भी गुजर जाए और फिर भी नज़र ना आए। हम जो सूरज गिरन, चाँद गिरन के लिए तारीखें मुकर्रर करते हैं 27, 28, 29, वो 27 उस वक्त आती है जबकि बड़ा चाँद 36 घंटे का भी शायद नज़र ना आए या मुश्किल उस जब वो आता है, तो वो भी मुमकिन है। तो एक तरफ मुमकिन है कि 24 घंटे से कम भी चाँद नज़र आए और दूसरी तरफ ये भी है कि 24 घंटे के ज़ायद 30 घंटे का भी नज़र ना आए। लेकिन आम तौर पर 24 घंटे लिया जाता है, 24 घंटे के बाद नज़र आ जाता है। तो कितनी अनसर्टेनिटी आ गई, आप ये देख लें। वहाँ पर जो था ये यहाँ पर जो जैसा कि एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद चाँद कब नज़र आता है यहाँ अनसर्टेनिटी आ जाती है। और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर फ़िज़ा भी बीच में आ गई। और ये सिर्फ फिर फलकियात का प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि अब ये सवाल पैदा हो जाता है ना कि चाँद कितना रोशन है और उसके मुकाबले पर ज़मीन सूरज कितनी रोशनी दे रही है। हम खुद देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमको सूरज बिल्कुल धुंधला सा नज़र आता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल तेज़ नज़र आता है। फ़िज़ा का फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा बादल हो जाते हैं, खफीफ सा बादल होता है, देखना भी सूरज को मुश्किल होता है। तो इस तरह से चाँद पर भी जब फ़र्क आते हैं तो इस वजह से वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाती है, हम नहीं कह सकते कि क्या है। तो ये एक तरीका जो इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि चाँद कब नज़र आएगा, वो यही है। तो सबसे आसान तरीका से वही है जो हमारे रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, नज़र आया तो देख लो, वरना एक ही दिन की बात है। ये अंग्रेज़ी दिनों की तरह नहीं है कि 28 से लेकर 31 तक चल रहा है कि आपको मुश्किल पेश आएगी। और हाँ, ये भी एक सवाल किया जाता है अंग्रेज़ी महीनों को क्यों इस्तेमाल न करें। अच्छा, अंग्रेज़ी महीने को इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा करेंगे? जो लोग चाहेंगे कि बहुत रोज़े रखे कहेंगे जनवरी अच्छा है 31, कोई चाहेगा हम इतने रोज़े नहीं रखते 28 अच्छा है फरवरी में रख लेंगे। तो ये तो हर एक के अलग चॉइस हो जाएगा। अच्छा भाई, मान लेंगे 28 और 31 को जाने तो 30 ले लेंगे, दोनों के दरमियान ही आता है, तो 30 का नवंबर अच्छा है। अच्छा, हम डिसाइड कर लिए अच्छा नवंबर में रखेंगे, हर साल नवंबर का जब महीना आएगा रोज़ा रखिए। तो जो लोग वहाँ पर इंग्लैंड में रहेंगे उनको तो अच्छा रहेगा, छोटा सा दिन रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग दूर रहेंगे उनको मुश्किल हो जाएगा, कहीं बड़ा दिन होता है, कहीं छोटा दिन होता है। जनूबी सदर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो वहाँ नवंबर में बड़ा लंबा दिन होगा, तो इतनी मुश्किलात पेश हो जाएंगे। इसलिए रोज़े को जो है सूरज के महीने से नहीं बांधा गया। और इस तरह से जो होता है चाँद के महीने से रखने से, चाँद का महीना रमज़ान कभी सर्दियों में आता है, कभी गर्मियों में आता है, और तो कभी दोनों किस्म के मौके आपको मिलते हैं। कभी सर्दियों में इबादत करो, कभी गर्मियों में इबादत करो, हर मौसम में खुदा ताला की इबादत होती है।
अच्छा, फिर मैं असल चीज़ के पास फिर आता हूँ कि मैं ये जो कह रहा था कि ये उम्र के अंदर इतना बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन पहले ज़माने में बेबीलोनियंस होते थे। क्या फरमाया था आपने बेबीलोनियन को मेरे साथ? बाबली। वो जो है यूनानियों से भी पहले उन्होंने बहुत साइंस का काम किया, और वो लोग भी महीना चाँद को देखकर शुरू किया करते थे। तो उन्होंने बड़े गौर से देखा चाँद को कि कब नज़र आता है, और उन्होंने जो उसूल बनाए बड़े आसान है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये देखा कि सूरज कब गुरूब होता है और चाँद कब गुरूब होता है। आप देखते हैं ना, रमज़ान के महीने में पहले सूरज गुरूब होता है, फिर बाद में चाँद गुरूब होता है। अगर चाँद पहले गुरूब हो जाए, सूरज बाद में गुरूब हो जाए, तो पुराना महीना है। आप ये समझ जाएं कि अब वो अगर आप कहें कि चाँद हमको नज़र आया लेकिन पहले गुरूब हो गया, तो उसके माने पुराना महीना ही चल रहा है। जब नया महीना शुरू हो जाएगा तो सूरज आगे रहेगा, चाँद पीछे हो जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि जब सूरज गुरूब होता है वो उसका क्या वक्त है, और चाँद जब गुरूब होता है तो क्या वक्त है। उन्होंने देखा कि 48 मिनट ऐसा वक्फा है, अगर 48 से कम हो तो नज़र नहीं आता, और 48 से ज़्यादा हो तो नज़र आ जाता है। और उनका उसूल वो आसान है मगर बहुत मुफीद है। उसमें उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि बाज़ दफ़ा मैंने बताया 24 घंटे का चाँद भी नज़र 24 घंटे से ज़्यादा ठहरना पड़ता, बाज़ दफ़ा कम ठहरना पड़ता। बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन उसके अंदर रेंज बहुत छोटा है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 48 या यूँ समझो कि पौना घंटा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत पहले से मालूम हो जाए कि कब रमज़ान शुरू होगा, तो ये चीज़ भी आपको आसानी से मालूम हो सकती है। और ये चीज़ भी एग्जैक्ट है, सूरज कब गुरूब होता है, चाँद कब गुरूब होता है, ये एग्जैक्ट है। तो आप मालूम कर ले सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेटरी से, और फिर आप देख सकते हैं क्या वक्फा है। अगर आपको दिखता है कि 1 घंटा है वक्फा, आप कह सकते हैं नज़र आ जाएगा। अगर आपको दिखता है आधा घंटा है, आप कह सकते हैं नज़र नहीं आएगा। अगर पौना घंटा उसकी कमो बेश है तो आपको कहना पड़ेगा पता नहीं। अब गौर से देखना क्या होता है कि जब आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर वो अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है जो बेबीलोनियंस ने इस्तेमाल किया, और इसको हम भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई पहले से ना मालूम हो तो हमको ईद की तैयारी करना पड़ती है, ज़्यादा दूध मंगाना पड़ता है, और ख़ासकर अमेरिका वगैरह में लोग कहते हैं हमको तो बहुत मुश्किल होगी अगर पहले से ना मालूम हो तो अंदाज़ा बहुत और कई दफ़ा ये अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकेंगे। मुश्किल कभी कभी आएगी जब उतने छोटे रेंज के अंदर 40 मिनट और 50 मिनट के ऊपर चाँद वक्फा रह जाता है, फिर आपको मुश्किल पेश आएगी, वरना आम तौर पर आसान हो जाएगा। तो अगर ये बातें मैं समझता हूँ आपको इससे अंदाज़ा होगा कि साइंस क्या कहती है, और क्यों बाज़ लोग कहते हैं जब इतनी साइंस तरक्की कर गई है हमको बताओ ना। मुझे भी कहते हैं बाज़ दफ़ा कुछ एग्जैक्ट तरीका बताओ, नहीं है तो कैसे बताएं। अब देखो फ़िज़ा कितनी मुश्किल है। अब 100 साल के बाद कब चाँद ग्रहण होगा, कब सूरज ग्रहण होगा, हम पहले से बता देते हैं कैलकुलेट करने के। लेकिन आप पूछिए अच्छा 2 दिन के बाद ये वेदर कैसा रहेगा, वो हमको नहीं मालूम। 2-3 दिन की हम क्योंकि फ़िज़ा की बात है, ये वो हमको नहीं, क्योंकि वो इल्म उतना ही है, वो इतने पैरामीटर्स है कि एग्जैक्ट कहना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर भी जब फ़िज़ा का मामला आ जाता है और उसके तो फिर फलकियात के एग्जैक्ट बात नहीं रह जाती है। बाज़ लोगों ने कहा इसी तरह से शुरू कर दें हम, कि जैसा कि एस्ट्रोनॉमर्स शुरू करते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह तआला से भी कहा फरमाया कि क्यों ना हम भी इसी तरह से शुरू कर दें जैसा कि साइंस वाले करते हैं। आपने मैंने कुरान में जो शाहिदा के लफ्ज़ है, देखना चाहिए, क्योंकि तो चाँद को देखना ज़रूरी है। और ये भी है कि मिसाल के तौर पर एक सूबा है, बड़ा सूबा है, आंध्रा का भी सूबा बड़ा है। ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स सूबे के अंदर देखे, क्योंकि अगर बाज़ दफ़ा जब खफीफ चाँद होता है तो हो सकता है हैदराबाद में नज़र ना आए, वरंगल में नज़र आ जाए, तो उस सूरत में आप गवाही को कबूल कर ले सकते हैं। ये एक ही किस्म का क्या कहते हैं होराइज़न, वो क्या था उसका लफ्ज़, उफ़क़। हाँ, एक किस्म का, उसको एक ही किस्म का उफ़क़ समझ जा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि पंजाब है और केरला है, ये बहुत बड़ा फासला है, और कई दफ़ा ऐसा होता है केरला में नज़र आ सकता है मगर कभी कभी होता है और पंजाब में नहीं। मगर आम तौर पर सारे मुल्क में एक ही होता है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है
लॉन्जिट्यूड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लैटिट्यूड में फ़र्क है। बिल्कुल साउथ इंडिया बिल्कुल ख़त इस्तिवा इक्वेटर के करीब है और नॉर्थ जो है ऊपर है काफ़ी 30-40 डिग्री पर। उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लॉन्जिट्यूड का फ़र्क बहुत पड़ जाता है। अमेरिका जो इस तरह फैला हुआ है तो इस वजह से वहाँ पर फ़र्क ज़्यादा होता है, हिंदुस्तान में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आम तौर पर सारे मुल्क में एक ही वक्त पे रमज़ान देखा जा सकता, रमज़ान का चाँद या ईद का चाँद देखा जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। हमारे जामिया अहमदिया के तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, उनमें से अगर किसी तालिब इल्म ने कोई सवाल करना हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। हाफिज़ साहब इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जिन इलाक़ों में दिन मामूल के दिनों से बड़े होते हैं वहाँ लोग किस तरह रोज़ा रखेंगे और सहरी और अफ्तारी करने का वक्त किस तरह मुकर्रर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ से मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दिनों में दज्जाल के ज़माने में एक दिन एक साल का भी हो जाएगा। और अब इसकी हकीकत मालूम पड़ी क्योंकि आप नॉर्थ पोल में चले जाएं तो एक दिन एक साल का होता है, 6 महीने दिन 6 महीने रात, हाँ? और वो बात पूरी हो गई। तो और आपने तरीका भी ये बतलाया है कि उस वक्त अंदाज़ा कर लिया जाए, क्योंकि खैर रमज़ान तो खैर साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन रमज़ान की नमाज तो हमको रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। तो 24 घंटे हम हस्ब मामूल नमाज़ पढ़ लिया करेंगे, अंदाज़ा करके कि मिसाल के तौर पर आप अगर आप नॉर्थ पोल में हों तो ये मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर आप ज़रा नीचे जाएं नॉर्वे की तरफ या स्कॉटलैंड की तरफ तो फिर ये मुश्किल पेश नहीं आती। तो जो करीब तरीन मुल्क है वहाँ पर क्या किया जाता है वो देख लिया जाता है, उसके मुताबिक नमाज के औकात और रोज़े के औकात भी उसी तरह से किए जा सकते हैं। और खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया कि ये तरीक़ ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि 2 किस्म के बातें हैं। एक तो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे दिन 12 घंटे रात तसव्वुर कर लें। दूसरा ये कि करीब तरीन मुल्क जो है उसकी क्या हालत है वो मालूम कर लें। और हुज़ूर के नज़दीक की दूसरी बात ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वरना अजब हो जाएगा कि एक आदमी नॉर्वे के अंदर तो लंबे रोज़े रख रहा है और ज़रा ऊपर चले जाए तो वो कहेगा मैं तो इक्वेटर को फॉलो करूँगा और छोटे रख दे थोड़े से फ़र्क में। तो जो नॉर्वे में जो तरीका इस्तेमाल करता है वही नॉर्थ पोल वाले भी इस्तेमाल करें। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जो तरीका इस्तेमाल होता है वही अंटार्कटिका वाले इस्तेमाल करें कि अंटार्कटिका में भी एक दिन एक ही 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो। सबसे पहली बात यह है कि जो सवाल आपने पहले किया था उस ज़माने में मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आजकल एक बड़ा शौक़ मुसलमानों का जड़ा हुआ है कि सारी दुनिया में एक साथ रमज़ान हो और एक साथ ईद हो। ये मुमकिन नहीं है। हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंशा नहीं था। यह तो वैसी ही बात हुई कि कोई ये कोशिश करे कि सारी दुनिया में मगरिब की अज़ान एक साथ होगी और नमाज एक साथ होगी, वो कैसे मुमकिन है। सारी दुनिया में ये कोशिश की जाए कि जुमा एक वक्त में होगा और ख़ुतबा एक वक्त में होगा, वो कैसे मुमकिन है। वो इस्लाम ने रखा ही नहीं है, जो तरीक़ा रखा ही नहीं है वो कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए रमज़ान का मकसद ये है कि ये कमरी महीने के साथ ये घूम के आता है। कभी हम सर्दियों में हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मियों में हैं, कभी वो गर्मियों में हैं, हम सर्दियों में हैं। तो कुरान का ये मंशा ही नहीं है, इस्लाम का ये मंशा ही नहीं है। ये तो एक सीधी सादी सी बात है कि जिस इलाके में चाँद नज़र आता है वहाँ आप रोज़ा रखें, नहीं तो 30 दिन पूरे करें और उसके बाद अगला महीना शुरू होगा। इसलिए ये कोशिश बेसूद है। एक छोटा सा वाक़या इस बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का बता देता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत कुरैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम से मदीना आए और उनसे पूछा गया कि शाम में कब लोगों ने रमज़ान शुरू किया था। कहने लगे जुमेरात को वहाँ चाँद नज़र आया था और जुमेरात को रमज़ान शुरू किया गया था। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा मदीना में कहने लगे हमें यहाँ हफ़्ते को नज़र आया था, हमने तो हफ़्ते से रखा है, हम तो अपने दिन पूरे करेंगे।
आप देखें कि शाम और मदीना ये तो जज़ीरा अरबिया में है, लेकिन उस वक्त उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें बताया कि जहाँ से तुम चाँद देखो वहाँ से अपनी गिनती पूरी करो और उसे मुकम्मल करो। तो ये नामुमकिन सी बात है, ये हो नहीं सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीधा साधा तरीका बताया है, जहाँ से आपको चाँद नज़र आता है रोज़ा रखो व अफ्तारू, और जब वो नज़र आ जाए उस वक्त हम ईद उल फितर मनाओ। एक छोटी सी बात जो आपने अभी 12 घंटे वाली बात कही कि जहाँ पर 6 महीने का दिन या रात है, सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया गया था और ये फ़िक़्ह अहमदिया में मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया कि 12 घंटे का वहाँ रोज़ा रखा जाए और उसके मुताबिक जो है वह अंदाज़ा करके नमाज़ें भी अदा की जाएँ। तो हर फ़क़्दुरू लहू, कुरान में हदीस में ये लफ्ज़ आते हैं कि वक्त के अंदाज़ा करके आप अपने रोज़े भी रख सकते हैं और दूसरे जो इबादत हैं वो भी बजा ला सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी बातें थी। जज़ा नाज़रीन किराम, दो नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने आपके सामने बहुत ही मुफीद और कीमती मालूमात रखी। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे इस्तिफ़ादा किया होगा और आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात भी इसमें आ गए होंगे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, अगला प्रोग्राम लेकर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।